Good morning, everyone. Just give me 1 second. I'm just having some technical challenge. I'll be with you in 1 second. No problem. Good morning, everyone. Good evening, good afternoon. Thank you so much for waiting. Sorry, I just had some technical issues. मेरा screen share नहीं हो रहा था. It's working now, so thank you so much. Welcome. Good A afternoon, ma'am. very warm welcome to every one of you in this session. Thank you so much for joining from different parts of the world. Thank you so much for your contribution and support. Thank you. Good morning. Good morning, morning, ma'am. Thank you so much. Good morning, Anita ji. Thank you. Good morning. Good Sumit. morning. Thank you. Thank you. Love you. Good morning, Madhuji. So nice Good to morning. see you, and it was so lovely meeting you at Rishikesh. Thank you so much. Thank you Same so here. much. Same here. Thank you. Thank you. good morning, Anjuji. Good morning. Good morning. Thank you so much. Good morning, Good Revati. morning, Thank you so Anjuji. much. Good It morning, was ma'am. so nice to meet you and your family and your friends. Thank you so much Good for morning. organizing the get together. It was so loving, so affectionate. Thank you so much. Thank you so much for your time. Good morning. Hi Radhika, thank you so much. Okay, how was the morning, exercise which everyone did yesterday? आपने पुरानी फोटोज निकाली या लेटेस्ट फोटोज निकाली, आप उनके साथ बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया? Did everyone get the chance to do it? Yes, ma'am. It Wonderful. brought back beautiful memories. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much for doing that. And जिन्होंने किया, that's wonderful. जिन्होंने नहीं किया, please आगे चलते चलते आज कर लीजिए. और it is a very powerful exercise. हो सकता है शायद वो feelings नहीं आए जो आप लाना चाहते हैं first day पे, but with practice, and this book also guarantees that it will happen. It will happen. जैसे आप एक अनियन का एक बाहर का छिलका उतारते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, layer by layer, when you keep practicing it, it will happen one day. So keep doing it. हो सकता है एक हफ्ता वो feelings नहीं आए जो हम feelings लाना चाहते हैं अपने दिल में, but this book guarantees you have faith, have the belief that it will happen. सबकी life में जो भी ये practice कर रहा है, miracles हो रहे हैं, तो हमारी life में क्यों नहीं हो सकते when we keep doing the practice. Okay, so It also brings back tears, ma'am, when you see people, your loved ones who are no more. yes, so very well said, Maraji. कि हो सकता है जब आप 7 मिनट की विजुअलाइजेशन करते हैं या जब मेडिटेशन करते हैं या ये मैचिंग वाली एक्सरसाइज जो हमने की थी क्वालिटीज के लिए, या फिर ये जो फोटोज वाली एक्सरसाइज है, जब आप फोटोज देखते हैं तो आप
को हम इमोशनल हो जाते हैं, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, आंखों में आंसू आ सकते हैं, दिल दुखता है, बट यू नो व्हाट, let it be, let the tears come, because this is actually when, और ये प्रैक्टिस क्यों बोली गई है, because this is actually the part of healing. ये एक हीलिंग प्रोसेस है. जब तक जो अंदर दबा हुआ है, अंदर सप्रेस्ड है, वो नहीं निकलेगा बाहर, तो हीलिंग कैसे होगी, राइट? जैसे अगर कोई वुंड है और अंदर उसके क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन है या पस पड़ गई है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तो हीलिंग कैसे होगी? सो लेट इट कम, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द हीलिंग. उसकी Okay, वजह से ma'am. बंद नहीं करना कि नहीं ये मेरे को प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे को रोना आता है, मेरे को मन दुखता है. नो, लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग दैट टू गिव हीलिंग टू आवरसेल्व्स, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन की शांति के लिए. that is part of it. Okay, ma'am. Great. Even in Great. forgiveness, I always say is bring back people whom I have hurt or have hurt me, to forgive them, because we have वो दबा के हम रख दिया. next उस part में Yeah. करेंगे, Okay. forgiveness. Okay. Yes. Thank yes. you. So Thank you. thank you. Okay, so let's start our next page. Let me just share the screen with you guys. कल हमने लास्ट एक पैराग्राफ पढ़ा था, and I will explain that. It was about if there is an abusive relationship. Can everyone see the book? Yeah. Yes. Okay, great. So Yes. this was the story. So may I please request someone to volunteer to read, please? Can I read today? Rekha here. Yes, Can yes, I read? please go ahead. Yes, thank you. So let's read the last paragraph. I'm sharing this story because, right, ma'am? No. वो हमने पढ़ लिया था. Giving love to other people. Giving love to other people does not mean you let people walk all over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't help you. Yeah. Love. So when you are abusing, when someone is abusing us, or if we are abusing someone verbally, physically, emotionally, that is not giving love. Okay. और उसको सहना भी is not giving love or receiving love. वो प्यार नहीं है. अगर हम किसी भी abusive relationship में हैं और हम उसको सह रहे हैं, that वहां कहीं पे भी love नहीं है. There is no love. वो किसी ना किसी की हमारी अगर मजबूरी है, चाहे हमारी फाइनेंशियल मजबूरी है, हमारी फिजिकल डिपेंडेंसी की मजबूरी है, हमारी हेल्थ की मजबूरी है, हमारे फिजिकल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, या any kind of मजबूरी we can say. So there is no love. वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से हम उस रिश्ते में हैं, जिसकी वजह से उसमें प्यार नहीं है, and that's why that relationship is abusive. लेकिन उसको सहना भी is not right. Next person, allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't. ना उसमें उसका कोई फायदा हो रहा है, ना आपका उसमें कोई फायदा हो रहा है. Love is tough. Yes, next page. Love is tough, and we learn and grow through its law. And as part of that learning, we experience consequences. So it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can, and the force of love
will resolve the situation for you. हाँ, Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. It's said by Remy Descartes, 1596 to 1650, mathematician and philosopher. हाँ, तो इसको अब बहुत ही अलर्ट होके समझने वाली बात है। इसकी एक एक लाइन को आप इसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं कि अब्यूसिव रिश्ते में रहना, उसको सहन करना डजंट हेल्प ईच अदर, उसमें कोई प्यार नहीं है, उसमें किसी ना किसी की मजबूरी है। और एक और चीज की होपफुल रहना कि हाँ ठीक है, आज तो उसने ऐसा कर दिया, आगे जाके वो इंसान चेंज हो जाएगा, शायद मैं कुछ ऐसा करूं कि वो अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया था, आगे जाके वो इंसान चेंज हो जाएगा। सो आई डोंट बी होपफुल एंड डोंट फील सिंपैथी फॉर योरसेल्फ। होपफुल रहना, अब्यूज को सहना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द लव, नॉट। अब इन्होंने बोला है कि लव इज टफ। लव इज टफ का क्या मतलब है? लव इज टफ मतलब कि ये एक रिडल है, हमें किसी को पता ही नहीं है कि लव का मतलब क्या है, रिलेशनशिप में लव का मतलब क्या, कैसे उसको लव को अप्लाई करना है, उसके रूल्स क्या है रिलेशनशिप के, उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और हमें लगता है लव करना इज वेरी टफ because we don't even know what the rules and the answers are. That's why it is tough. और हम क्या कर रहे हैं अभी, and we learn and grow through its law, and as part of that learning we experience consequences. अब हम क्या कर रहे हैं, रोज उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे वो उसको अप्लाई करता है, क्योंकि किसी को सेट रूल्स तो मालूम नहीं, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अच्छा अब ये करूंगी तो शायद ये हो जाएगा, अच्छा अब ये करूंगा तो शायद ये हो जाएगा, शायद वो दूसरा बंदा खुश हो जाएगा, बट इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली अप्लाइंग द रूल्स ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ लव। तो इसीलिए वो टफ है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमने अभी उस रिडल को सॉल्व ही नहीं किया, हम उसको लर्न कर रहे हैं, और जैसे जैसे लर्न कर रहे हैं वैसे वैसे हम उस ग्रो भी कर रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, इसको अंडरस्टैंड करने के, इसको अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, ठीक है। अब हमने 5 रूल्स हैं, और एक ही रूल को अगर हमने अप्लाई किया तो क्या हमें वैसा रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर जब तक हम उसको सारे रूल्स को नहीं अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक रूल को अप्लाई किया, फिर क्या हुआ, कुछ काम कर गए, कुछ नहीं काम कर गए, फिर हम ऊपर उठे, फिर नीचे गिर गए, राइट, फेल हो गए, फिर उठे, फिर अप्लाई किया, फिर दूसरा रूल अप्लाई किया। सो इसके रूल्स हैं, नियम हैं, जो कि किसी को मालूम नहीं है, हम सब लर्न कर रहे हैं, और हम इसको धीरे धीरे लर्न करके अपनी जिंदगी में अप्लाई करके, इसको प्रैक्टिस करके वी विल एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं? जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये मालूम है कि मेरे को नेगेटिव नहीं बोलना, मेरे को किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि मेरे को वो वापस मेरे पास आने वाला है किसी के रूप में। लेकिन किसी ने अगर मेरे को बोला कि ये क्या खाना बनाया, पत्थर जैसी रोटी बनाई, राइट, इसमें नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, व्हाटएवर जो भी उसने बोला, लेकिन उस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और मैंने उल्टा जवाब दे दिया, मैंने कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल दिया। अब क्या हुआ, मैंने रूल को ब्रेक किया, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी, राइट। अब मेरे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस वैसे होने चाहिए जो कि आपको चाहिए आपकी जिंदगी में वापस है। लेकिन मैंने रूल को ब्रेक किया, मैंने गलत बोला, मेरे को गुस्सा आ गया, आई वेंट बिलो द लाइन ऑफ द फीलिंग्स। अब क्या होगा, I will experience the consequences of that reaction, right?
वो कहीं ना कहीं मेरे पास घूम के आने वाला। लेकिन फिर मैं क्या बोलूंगी, अरे यार मैं तो सारा टाइम ये रूल अप्लाई करती हूँ, मैं तो नेगेटिव भी सोचना बंद कर दिया, नेगेटिव वर्ड्स भी बोलने बंद कर दिए, लेकिन दैट वन इंसिडेंट, विल दैट कम बैक टू मी और नॉट? इट विल कम बैक। सो जैसे जैसे हम लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इस लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपने कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आज हम अगर ये डिसाइड कर लें कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने सारे रिश्तों के लिए, मेरे को ना किसी के लिए बारे में नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है, दैट्स इट, पीरियड। आज अगर हम अपने सारे जितने भी लोग यहाँ पे अपने आप से प्रॉमिस कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे सर्कमस्टांसेस है उसका शुक्रगुजार करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना कुछ करना है। क्या कुछ नेगेटिव हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा? नहीं आएगा, because we have learned that law, and whatever this book is saying we will apply those rules. बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लर्न कर रहे हैं, इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हमें लगता है कि लव इज वेरी टफ, लव इज वेरी टफ। ये हम लोग को लगता है कि बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल। कितने लोगों को लगता है? मेरे को तो लगता है, क्योंकि रोज टेस्टिंग होती है। कभी बॉस के साथ टेस्टिंग होती है, कभी हस्बैंड के साथ टेस्टिंग होती है, कभी बच्चों के साथ टेस्टिंग होती है, पेशेंस की टेस्टिंग होती है, स्टेमिना की टेस्टिंग होती है, स्पीड की टेस्टिंग होती है, एनर्जी की टेस्टिंग होती है, हर चीज की टेस्टिंग होती है। लेकिन एग्जाम तो रोज होगा हमारा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, अब हमारा इसका कोई फाइनल एग्जाम तो हमारा कोई होगा नहीं, कोई बोर्ड का एग्जाम तो होगा नहीं जिसमें हमारे नंबर आएंगे कि हाँ भैया आपने 70% लिया, आपने 80% लिए। तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? यूनिवर्स हमारी टेस्टिंग कैसे करेगा? ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी में भेज के, ऐसे स्टेटमेंट्स दूसरों से बुलवा के, या ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करके कि देखूं अब इसने जो सीखा था वो कितना ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता है। ऐसे टेस्टिंग होगी हमारी, तब हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में, हमारे कितने आज नंबर आए, आज हम फेल हो गए कि आज हम पास हो गए। जिस दिन फेल हो गए उस दिन अगले दिन फिर उठेंगे, फिर उस रूल को अप्लाई करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आज मेरे को पास होना है, आज मेरे को पास होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। राइट? सो फर्स्ट वी विल लर्न द रूल्स, then we will start applying it into our lives, and we will grow and evolve as per the results what we want in our life. ये आज हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको लर्न करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और अपनी लाइफ को एक बेस्ट लाइफ जो भी हम जीना चाहते हैं वैसा बनाएंगे। राइट? और ये एग्जाम टफ है, बिल्कुल टफ है। जैसे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या हमें किसी ने बताया कि रिश्ते मेंटेन की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी ने नहीं बताया। अब उनका भी कितना कंपटीशन होता है कि नहीं होता है, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा भी रोज टेस्टिंग है, रोज कंपटीशन है, रोज पेशेंस, एवरीथिंग। आवर फीलिंग्स की टेस्टिंग हो रही है, रोज फीलिंग्स की टेस्टिंग है, बिकॉज लाइफ इज व्हाट? फीलिंग्स आर गॉड। आज मैं 2 सेकंड में खुश हूँ, मेरे को आज प्रियंका ने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर मैं 2 सेकंड में सैड हो जाऊंगी। तो मेरी फीलिंग्स की रोज टेस्टिंग हो रही है। राइट? सो लेट्स और हमें यह भी मालूम है कि अगर हमने रूल को ब्रेक किया तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ब्रेक कर देगा, ये भी मालूम है। इट विल ब्रेक अस, क्योंकि ये जो लॉ है ये कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, चाहे आप इसको माने चाहे ना माने। जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ मैथ्स, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स, ये हमारे चारों ओर काम कर रहा है। राइट? सो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड छोड़ के
ये जो बुक बोल रही है उसको सुनना है, उसकी एडवाइस को अपने लाइफ में अप्लाई करना है और अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना, राइट? Whenever an answer is so, it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is, answer क्या है इसका? Get yourself onto the highest frequency of good feelings. Highest frequency of good feelings feeling chart में कौन सी हैं? Anyone? Love, gratitude, Loveful acceptance. person. Love love, and gratitude. gratitude. Yes. तो अपने आप को हमेशा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी आई थिंक पीछे हम चैप्टर से करते हुए आए हैं कि जैसे ही किसी ने आपको कुछ बोला, जैसे ही आपको लगा कि आप लो फीलिंग्स में जा रहे हो, आप सबको क्या करना है? अपना बाथरूम में चले जाओ, कमरा बंद कर लो, किसी भी चीज का get yourself onto the highest frequency of good feelings. Please underline this, highlight it, क्योंकि ये जो आप अंडरलाइनिंग हाईलाइटिंग कर रहे हैं और अपने जो नोट्स बना रहे हैं, ये आपको उस दिन काम आने वाले हैं कि जब ये सेशन नहीं होगा, जब आप अकेले होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप मैं किससे बात करूं, मैं किसको फोन करूं, मैं किसके पास जाऊं, ये तब काम आने वाले। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप प्लीज अपने नोट्स बनाइए, इनको हाईलाइट्स करिए, क्योंकि ये जो 2 किताबें हैं, मैजिक बुक और पावर बुक, ये आपको सारी जिंदगी अगर आपके पास हैं और आपने इनके नोट्स बनाए हुए हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी साइकेट्रिस्ट काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ओपन द बुक, रीड योर नोट्स एंड सी व्हाट दिस बुक इज सेइंग। इसको बस अपना गुरु बनाना। So please underline this कि get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can. फटाफट ऐसी चीजों का शुक्राना कर दो, और कुछ नहीं तो सिर्फ अपने आप को देखो कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरे 2 हाथ काम कर रहे हैं, थैंक यू, मेरी 2 आंखें हैं, थैंक यू, मेरा दिल धड़क रहा है, थैंक यू, मेरे सर के ऊपर छत है, थैंक यू, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, थैंक यू, मेरे पास पानी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, थैंक यू। फटाफट अपने आप को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लाके दैट यू कैन, एंड द फोर्स ऑफ लव विल रिजॉल्व द सिचुएशन फॉर यू। फोर्स ऑफ लव, जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड और लव की फीलिंग्स में आते हैं, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप वो यूनिवर्स खुद ही आपके लिए रिजॉल्व कर देगा। Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. मैं अपनी आत्मा को इतना प्रकाशित कर दूं, मैं अपने आप को इतना बुलंद कर दूं, मैं अपने आप को इतना हाई फीलिंग्स में कर दूं अपनी आत्मा को, कि वो जो मेरे को इंसान अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी आत्मा तक पहुंच ही ना पाए। समझ रहे हैं कि मैंने आज अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि मैं ग्रैटिट्यूड और लव का कवच पहन लूंगी, और जो भी इंसान मेरे तरफ उंगली उठा के मेरे को अब्यूज करना है, वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो गोलियां अगर चला रहा है तो वो गोली मेरी बॉडी को टच भी नहीं करेगी, राइट? उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आज ये समझ लिया कि मेरे को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड गुड फीलिंग्स में रहना है, और उनकी जो भी अब्यूज है, जो भी शब्द हैं, जो भी एक्शंस हैं, वो मेरे को टच भी नहीं कर पाएंगे। इतना अपने आप को बुलंद, इतना अपने आप को हाई कर लो, इतना अपने आप को रेज कर लो, सिर्फ इन फीलिंग्स में रह के। ये जितने भी जैसे होते हैं संत महात्मा लोग होते हैं, जैसे आई डोंट नो कितने गुरुज हैं, सदगुरु जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, अब उनका लोग फॉलोअर्स भी बहुत हैं और उनकी लोग बुराइयां भी बहुत करते हैं, राइट? अगर मैंने एक लाइव सेशन यहाँ पे अटेंड किया था
तो कोई गुरुजी आए हुए थे और उनको एक इंसान ने खड़े होके बहुत जबरदस्त पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन उन्होंने अपना ऑरा, उन्होंने अपने आप को इतना हाई किया हुआ है अपनी तपस्या से, अपने ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स में रह के, शांत रह के, काम रह के, मेडिटेशन में रह के, कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई जो मर्जी बोलता रहे। अगर मैं आपको बोलूं या कोई भी आपको बोले कि बाकी सारे लोग बोलते हैं आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन आपके हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार खाना बनाते हो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, जब भी आप खाना बनाते हो सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो जो सामने वाला है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है पता नहीं, पर ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, राइट? लेकिन आपको अंदर से ये मालूम है दैट इज नॉट राइट, तो फिर वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आपको क्यों बुरा लग रहा है? Because whatever that person is saying is not right according to you. So ये प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे सीजन्स चेंज, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये जो जिंदगी हमें मिली है ये हमें हर्ट सफोकेशन कंजेशन में रहने के लिए नहीं मिली, स्ट्रगल करने के लिए नहीं मिली, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए मिली है। तो ये दूसरे कौन होते हैं हमारी जिंदगी को ऐसा करने के लिए? किसी के पास कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी को हमको हर्ट करने के लिए, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनको अलाउ करते हैं। जैसे ही वो उन्होंने रिमोट बटन प्रेस किया हमारी फीलिंग्स का, हम नीचे। रिमोट कंट्रोल आज से अपने हाथ में लेना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल खुद करना है। कोई भी हो, आपकी मेड हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी डॉटर इन लॉ, आपका बॉस हो, मैं जब सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी आई तो आप क्या करते हो? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? एसी लगाते हो अपने कमरे में, कूलर लगाते हो, इन्वर्टर लगाते हो, जनरेटर लगाते हो। सर्दी आ गई, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? आप हमेशा गर्म काढ़ा पीते हो, चाय पीते हो, साग खाते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो और गर्म कपड़े पहनते हो। किस लिए ये सब करते हो? किस लिए करते हो? Self protection. यस, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट? कि आज Yes. सर्दी है तो सर्दी से बचना है, गर्मी है तो गर्मी से बचना है, ठंडा पानी पीना है, एसी में रहना है, बाहर नहीं जाना, हल्के कपड़े पहनने हैं। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। अगर आप सड़क पे जा रहे हो एंड सम डॉग इज बार्किंग, कोई कुत्ता भौंक रहा है, वो आपके पीछे आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागोगे कि नहीं भागोगे? ट्रैफिक में आप जा रहे हो, सड़क क्रॉस कर रहे हो, आप दोनों तरफ देखते हो 3 बार 4 बार कि व्हेन इज इट सेफ टू गो, बिकॉज एवरी टाइम एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हो कि उनके ऊपर कोई कोई दुख ना आए, कोई चिंता ना आए, कोई वरी ना आए। आप हर चीज के लिए तो अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते जब कोई सामने वाला कोई ऐसे बोल रहा होता? उसको सुन के, उनके वर्ड्स को सुन के, उनकी एक्शंस को सुन के क्यों हम नीचे चले जाते हैं? क्यों हमारे पास वो, हमने अपने शिफ्टर्स, अपनी लिस्ट नहीं बना रखी कि जब ऐसा होगा हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस पावर को जो हमारे अंदर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो फ्रॉम टुडे, whenever someone offends me, I will raise myself, I will raise my atma, I will raise my soul so high कि वो offense मेरे पास पहुंच ना पाए।
right? This is a very, very powerful sentence. Please note yourself and please highlight this. Yes, next paragraph. The secret to relationships. Secret क्या है? To Let's read. relationships. Life presents everything to you so that you can choose what you love. And part of the gift of life is that you are given all kinds of people, so you can choose what you love in those people and turn away from what you don't love. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love, but simply to turn away without giving them any feeling. Turning away from what you don't love is someone means you are relaxed about it and you know life is giving you a choice. It doesn't mean that you argue with them to prove they are wrong, or you criticize or blame them, or you want to change them because you think you are right. Because if you do any of these things, you are not giving love. Big time. Another lesson to learn जो हम सब गलती करते हैं, right? लाइफ आपको हमेशा हर क्षण चॉइस देती है. एवरी टाइम वी हैव अ चॉइस कि हमें क्या करना चाहिए. चूज व्हाट यू लव. और यूनिवर्स ने हमारे को लाइफ में हर तरह के लोग दिए हुए हैं, हर तरह के. वैरायटी है कि नहीं है? आपके पास कपड़ों की वैरायटी है, जूतों की वैरायटी है, लोगों की वैरायटी है, रिश्तों की वैरायटी है. कोई बड़ा खुश मिजाज है, कोई कोई किसी का गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, कोई बड़ा अफेक्शनेट है, कोई काइंड है, कोई बड़ा फ्रेंडली है, कोई आपके लिए हमेशा, चाहे वो फोन भी ना करे, लेकिन जब भी आपके ऊपर कोई दुख आता है वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है. सो वी हैव वैरायटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बट वी हैव टू चूज कि हमें क्या उस इंसान में पसंद है. इसको प्लीज, इसको फिर से अंडरलाइन कीजिए. देखिए, चूज, थर्ड लाइन जो है, चूज व्हाट यू लव इन दोज पीपल. आपको चूज करना है कि आपको उनमें क्या पसंद है, और जो आपको नहीं पसंद वहां से आप भाग लो. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love. आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप बैठ के लव को मैन्युफैक्चर करो और उनके अंदर डालो. लव को मैन्युफैक्चर करना मतलब कि आप बैठ के लव की क्वालिटीज अपने अंदर बना रहे हो और फिर आप सोचोगे कि हाँ अब मैं उसके अंदर डाल दूं. नहीं, यू सिंपली टर्न अवे विदाउट गिविंग देम एनी फीलिंग. उन्होंने, किसी ने भी कुछ कुछ बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, आप वहां से हट जाओ, चले जाओ कहीं, बेडरूम में चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ, वॉक के लिए चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ. जस्ट टर्न अवे. कोई फीलिंग देने की जरूरत नहीं है उनको, राइट? इसको अंडरलाइन कर लो. जिसको भी लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. और फिर टर्निंग अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट लव इन समवन मींस यू आर रिलैक्स. तो उसमें क्या होगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको रिलैक्स फीलिंग होगा क्योंकि आप वहां से हट गए. एंड आपको उस टाइम ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आज यूनिवर्स मेरे को यहाँ पे चॉइस दे रहा है. क्या चॉइस है? कि मेरे पास चॉइस है, मैं आर्ग्यू कर सकती हूँ, मैं उसका जवाब उल्टा वापस दे सकती हूँ, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैं गलत नहीं हूं, मैं ठीक हूं, मैं उसको ब्लेम कर सकती हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, मैं उस इंसान को चेंज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. ये भी चॉइस है मेरे पास. और दूसरी चॉइस ये है कि मेरे को इसमें से कुछ नहीं करना. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम देयर and I just want to go in the highest of feelings of gratitude and love, and this is what I have chosen for myself. Because if you do any of these things,
जब हम आर्ग्यू करते हैं, ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट गिविंग लव, वी आर नॉट गिविंग लव बिग टाइम। अब इससे ज्यादा वो इंसान, ये बुक हमें नहीं समझा सकती कि भैया इसको समझ लो, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, यही रूल है, यही लॉ अप्लाई करके ही रिश्ते ठीक होने वाले हैं। चाहे आप इसको मानो या ना मानो, अप्लाई करो या ना करो, पर ये जो बुक लिखी गई है बहुत ज्यादा रिसर्च से, बहुत ज्यादा होली बुक से जिन्होंने लिखी है, अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इस पे लगाई है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इनको इस चीज को अप्लाई किया। बिग टाइम। अभी तक जो अभी क्या वो बोल रहे हैं कि जाग जाओ। So let's read the next paragraph. Yes, और यही turning up. सीक्रेट है, यही सीक्रेट है रिलेशनशिप का। Ma'am, can you scroll a little down, please? Because we read this, yeah. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. Said by King Solomon, circa 10th century BC, biblical king of Israel in Proverbs 11:17. हाँ, When आपकी अपनी आत्मा नरिश होती है, आपकी अपनी आत्मा को प्यार मिलता है जब आप प्यार करते हो, देते हो, और आप जब काइंड हो, कंपैशनेट हो। लेकिन जब हम काइंड और कंपैशनेट नहीं होते, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी देखा है कि एकदम जैसे कईयों का मुंह लाल हो जाता है, कईयों का पसीना आना शुरू हो जाता है, बॉडी शेक करनी हो जाती है। इवन दो हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमारा दिल धड़कने ज्यादा, हार्ट बीट तेज हो जाती है। कभी नोट किया है किसी ने? हमारी अपनी हेल्थ ही खराब हो जाती है। Yes, ma'am. उसमें किसी का नुकसान होता है? खुद का होता है। खुद का होता है। अपना ही सब कुछ खत्म होता है, दूसरे का कुछ नहीं जाता। तो we are here to protect ourselves. So nourish your soul by being kind, by being loving and being grateful. Please, let's not destroy our soul. We are not here to destroy our soul. We are here to grow and evolve ourselves. Next one. Yes, when you are on a feeling frequency of love, then only people who are on the same feeling frequency as you are can come into your life. You know, some days you feel really happy, some days you feel irritated, and other days you feel sad. You can be many different versions of yourself. A person in a relationship uh, with you can only be many versions, including happy, irritated, or sad. No doubt you will have seen them being many different versions, but every version is still that person. When you are happy, then only the happy version of the other people come into your life. But you have to be happy to receive the happy versions of the other people. हाँ, तो दूसरा एक सीक्रेट तो है, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कंप्लेन नहीं करना, सबको काइंडनेस और कंपैशनेट फीलिंग्स देनी है। द नेक्स्ट वन इज, जब आप खुश रहेंगे, कोशिश करनी है कि हम हाई फीलिंग्स में रहें। हाई फीलिंग्स में हैप्पीनेस आती है। एवरीवन रिमेंबर, अबव द लाइन फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग्स हैं? ग्रैटिट्यूड है, लव है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, जॉय है। So we have to be on the happy feeling. Irritated रहेंगे, frustrated रहेंगे, disappointed रहेंगे, तो क्या हमारे पास वो वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे? आपको किसी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड पर्सन के साथ मिलना अच्छा लगता है? नो मैम, नो। किन लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है? जो हैप्पी हो और जो पॉजिटिव फीलिंग हो। Yes, so happy, positive, fun, loving, laughter, smiling person, right?
क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहेंगे तो नो डाउट कि वी वोंट अट्रैक्ट दोस काइंड ऑफ पीपल। अगर हमें गाने सुनना पसंद है कि मेरे को आज गानों वाला चैनल लगाना है, तो जब आप वो चैनल एफएम चैनल लगाओगे तभी तो गाने सुन पाओगे ना। Yes. सेम फ्रीक्वेंसी पे जब ट्यूनिंग करोगे रेडियो में या टीवी में, तभी तो वो गाने सुन पाओगे। मूवी देखनी Yes. है तो मूवी का चैनल लगाओगे, उसकी ट्यूनिंग उसका चैनल लगाओगे। तो सिमिलरली जब हम लव ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तभी हमारे साथ वही चैनल वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो उस फ्रीक्वेंसी पे हैं। Then only we will attract those kind of people. Then only we will attract love and gratitude in our life. So first we have to be on that level of frequencies of feelings. Only then we will attract other people with those kind of feelings in our life. ये second secret है। तो हमें खुश रहना है। खुश रहने के लिए अपनी लिस्ट आज हमें 2 लिस्ट बनानी है कि what makes me happy, what brings smile on my face। अगर मेरे को कोई कुछ बुरा भला भी कह रहा है तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं एकदम अपना मूड ठीक कर सकती हूँ, अपना मूड ठीक कर सकता हूँ और मैं हाई फीलिंग्स में जा सकता हूँ। गाने सुनकर, वॉकिंग कर कर, योगा करके, पेंटिंग करके, पियानो बजा के, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, ऐसा क्या मैं कर, उसकी लिस्ट बनानी है, हैप्पीनेस की लिस्ट बनानी है। You have to be happy to receive the happy versions of other people. That is the law of attraction. Let's read one more paragraph. Ma'am, can I ask you one question? नहीं, questions बाद में लेंगे. Please let me finish this page. Please, thank you. Okay. Thank you. Yes. It doesn't mean you are responsible for other people's happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. What it means is there's nothing else for you to do but to feel happy yourself, and the law of attraction will do the rest. हाँ, अब तीसरा सीक्रेट क्या है? Very, very important. Please be alert. You are not responsible for other people's happiness. Because everyone is responsible for their own happiness. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि दूसरा इंसान खुश है कि नहीं है आपसे। What it means, there is nothing else for you. आपको खुश रहना है, आपको कैसे खुश अपने आप को रखना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दो। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आप हमेशा, अगर आप 16 घंटे पूरे दिन में जागते हैं, 16 घंटे में आपको 51% ऑफ दैट टाइम, which is let's say 9 hours, क्या आप हाई फीलिंग्स में रहते हैं? इसको चेक करो पहले। You are only responsible for your own happiness. You are not, because सब लोग अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी जिंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। Your responsibility is only to feel happy for yourself, and the law of attraction will do the rest. Happiness depends upon ourselves. Aristotle, Greek philosopher and scientist. Aristotle को आज गूगल कर लेना कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर्स थे और इन्होंने किस चीज पे रिसर्च करी थी, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर ने ये बात बोली है कि आपकी अपनी खुशी आप पे निर्भर करती है। आप अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं रोज? मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। आज हम लिस्ट बनाएंगे कि हमें कौन सी हैप्पीनेस लिस्ट, क्या क्या चीजें हम ऐसे करें कि हमें खुशी मिले, and we will start practicing that in our daily life.
ओके और कल हम ये जो पेट्स वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा कि क्यों ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। तो कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट्स स्टॉप हियर। लेकिन आज का चैप्टर के बाद आई विल जस्ट से कि शांति रखो, जो है उसका शुक्रिया करो कि मैं जिंदा हूँ, कि मेरे पास इतने सारे बहुत अच्छी फैमिली है, घर है, मेरे पास फ्रीडम है, और सब कुछ मेरे को अगर सॉर्ट आउट करना है, मेरे को लाइफ सॉर्ट आउट करनी है, आई वॉन्ट अ सॉर्टेड लाइफ, तो मेरे को अपने को पहले स्पेस देनी पड़ेगी और दूसरों को भी स्पेस की फ्रीडम देनी पड़ेगी। किसी को कंट्रोल करके तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, दिस इज कंट्रोलिंग। You have to give space to people, we have to give space to ourselves and give freedom to others. तो अगर हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, अगर हमें फ्रीडम चाहिए टू मेक आवर ओन डिसीजंस, अगर हमें प्यार चाहिए, अगर हमें पेशेंस चाहिए, अगर हमें कोई ऐसा सुनने वाला चाहिए, सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर own freedom, own love, own respect first. Start giving a space to us and जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? Open sky. ओपन स्काई। Clouds. क्या है वो, क्या है? लाइक ओपन स्काई, Vastness. वास्टनेस, उसमें कोई क्लटर, कोई ये कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ उधर पड़ा हुआ है, ये बर्तन, पेड़ पौधे, पोल्यूशन, ऐसा मतलब Clear and bright skies. it's like total emptiness. There's no clutter, there's calmness, there's shanti, there's peace, there's vastness, and there is so much space, right? Yes. Yes. तो वैसी वाली स्पेस अपने अंदर क्रिएट करनी है, दूसरों को भी वो स्पेस देनी है, अपने अपने भी अंदर स्पेस वो लेके आनी है, बिकॉज स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फ्रीडम इन रिलेशनशिप। स्पेस दो, आजकल सब एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं कि नहीं, पहले तो सारे घर में हम लोग इकट्ठे रहते थे, एक ही बाथरूम होता था, आप सबके अलग अलग बेडरूम्स हैं, अलग अलग टीवी है, अलग अलग लैपटॉप है, अलग अलग फोन है, अलग अलग बाथरूम्स हैं, अलग अलग गाड़ी है, सब अपनी अपनी स्पेस मांग रहे हैं। आई वॉन्ट माई ओन स्पेस, आई वॉन्ट माई ओन डेस्क। वैसे ही रिलेशनशिप में भी स्पेस देनी है, जिसको जो अच्छा लगता है करने दो। So give space, and that is another secret of having the freedom in relationships, by giving space to yourself and giving space to others. High frequency feelings में रहना है, और आज से अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ कैसे बनाना है, कुछ भी करो, कुछ भी करके नेगेटिविटी से दूर रहना, ना नेगेटिव वर्ड्स बोलने हैं, ना सोचने हैं, ना एक्शंस करने, कुछ भी करो नेगेटिविटी से दूर रहो। इसमें रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, लव की फीलिंग्स में रहना है, अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी है। और दिस बुक गारंटीज दैट आपकी सपनों की दुनिया ज्यादा दूर नहीं है। अगर जो भी आपने ड्रीम लिखी है, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट यू वांट इन योर ड्रीम्स, it will make it happen. Okay, so let's stop here. Let's go into 7 minutes of visualization. विजुअलाइजेशन सबकी ठीक चल रही है, जो भी हम 7 मिनट्स की करते हैं। अगर आपको विजुअलाइजेशन में इमोशनल फीलिंग हो रही है, दैट इज नेचुरल। अगर एक ही चीज आपको, जैसे मैंने कल भी बोला था कि सिर्फ एक ही सीन आपके सामने आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो बस उसी को ही देखते रहो। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट इन द सेशन। मैं आपको अपने
अपने टाइम में भी करने के लिए बोल सकती थी, बट लेट्स प्रैक्टिस इट. अगर आप मेरे को अपना फीडबैक दे देना, अगर आपको लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, then we can stop it and we can straight go into the meditation. But please visualize, जिस किसान के साथ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप, उसको बस उसका चेहरा, उसके साथ आप क्या फ्यूचर में चाहते हैं, कैसा आपका सर्कमस्टांसेस चाहते हैं, आप उनके साथ हॉलीडेज कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छा शांति वातावरण चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको इमेजिन करना. नॉट एट ऑल वेरी यूजफुल. ओके, तो मधु जी आपको ये यूजफुल नहीं लग रहा है? ओके. Ma'am, I find it very useful because I'm very weak in visualization, and this really helps me. Okay. Okay, let's start. So It's 7 very minutes start. useful Let's. for me. It's हाँ जी? very useful for me. It's very useful for me. Very As you useful. said, कि अगर waste of time है, so that's why I said कि not at all. It's not the Oh, waste of अच्छा. time. Okay, okay. Okay, No, sorry. it's really useful. It's And really you- देखिए अब कैसे मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है ना, यहाँ पे देखो कितनी बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. So thank you so much for clarifying, Madhu ji. Thank you so much. Okay, let's start our visualization. Thank you so much. Anju ji, thank you so much. It is extremely useful. Wonderful, wonderful. Ma'am, actually, it's so therapeutic, madam. It's so therapeutic. The way you do it, it's sort of like a healing for me. It Thank is a you. healing process actually. It is Yeah. a healing process. ये पूरे सेशन की जान है, पूरे सेशन की जान है. मतलब ये हमारा प्रैक्टिकल वो हो रहा है. हाँ, क्योंकि ये जब अपने आप करते हो तो ना वो 7 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं. जैसे हो सकता है आपको 7 मिनट भी ऐसे लग रहे हो इस सेशन में, ओ माय गॉड ये अब 7 मिनट हुए कि नहीं हुए, कब खत्म होगा, मैं तो एक ही कभी सीन को भी बार बार नींद भी देखे आती जा है। रही हूँ, देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ. कई लोग फिर उबासियां आती हैं, रोना आता है कि अरे यार कब खत्म होगा ये. बट तो वो फील भी नहीं आती. अंजू जी, वो फील भी नहीं आ पाती है, और कहीं ना कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाता है. यहाँ पे रूम बंद करके आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है विजुअलाइजेशन, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू. thank you Rashmi, thank you. Okay, let's start. Let's close our Love eyes. you. Last I'll question, put the ma'am. music on. While visualizing, we can imagine that the person is healing. That also we can do it, no? That the other person we are visualizing for is healing. आपको दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है रेखा जी, आपको सिर्फ अपने पे काम करना है. Okay. ठीक है. भूल जाइए दूसरों के लिए. इट्स आप वो पूरी हेडिंग हमने पढ़ी है. इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू. Yes. भूल जाओ दूसरे इंसान के साथ आपके रिश्ते कैसे अच्छे हैं, आपको उनमें क्या अच्छा लगता है उसको विजुलाइज करना है, आपका फ्यूचर उनके साथ कैसा होना चाहिए उसको विजुलाइज करना है. ओके, so let's sit straight, let's have our back straight, let's close our eyes, let's take few deep breaths and let's start. और ये जो म्यूजिक है ये दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल म्यूजिक फॉर डीप हीलिंग. If you want respect, freedom to make decisions,
financial independence. Care, love. आप उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना सक्सेस, अपनी ड्रीम्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। There is consideration. There is care. I'm changing my thoughts, words, my actions. I am seeing the change I wish to see in my relationships. The beautiful relationship. I'm seeing the peace. Appreciation. मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही खुश नसीब हूँ। I'm seeing so much of understanding. I'm seeing the wonderful communications between ourselves. I'm seeing that person patiently listening to me.
seeing that relationship where both of us are having so much fun, so much laughter. Let's go into our meditation. Keep your eyes closed. From today, I choose to be positive. I choose to be responsible for my life. अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए आज I make a promise that I will stay from all the negativity अपनी सपनों की दुनिया की तरफ जाने के लिए I choose to stay in the highest frequency of feelings of love and gratitude. I am more confident and proficient every day. I release all fear. I release all tensions. I believe in me. मेरे को मुझे अपने ऊपर विश्वास है. I am a capable person. I can do it. I can stay positive. I can stay in the highest feelings of love and gratitude. I believe in my abilities. I can handle anything that comes my way.
I am at peace. I have all the time I need. I flow with life easily and effortlessly. From today, I'm going to live the best life of my dreams. I am a magnet for miracles. I am a magnet for abundance, love, and beautiful relationships. From today, I will be the change which I wish to see in my life and in the world. I release the past and I trust the process of life. All my relationships are enveloped in a circle of love. I have wonderful, harmonious relationships with everyone where there is mutual respect and care on both sides. I am beautiful. I am powerful. I open my heart today with unconditional love for everyone in my life. I have this power within me. And I'm willing to change. I am open to all the goodness and abundance and love in my life. And so it is. And so it is. And so it is. Let's bring our hands in the center of the heart and give our deepest gratitude and love to dear Mother Earth by bowing our head. Thank you, thank you, thank you, dear Mother Earth, for keeping me balanced, centered, grounded, and blessing me with infinite abundance in my life every day. Thank you, thank you, thank you.
Let's energize our hands and face our hands towards each other. Let's put our videos on. Let's give our prayers, blessings, love, gratitude, our smiles to each and everyone on this planet. And let's pray for each other. May everyone's dreams and wishes come true. May everyone live a very happy, healthy, loving, peaceful, abundant life. May everyone's loved ones, wherever they are in the world, live a very happy, healthy, joyful life of their dreams. May peace, love, health, happiness, and abundance prevail on this planet and in all our lives, in everyone's lives. आप सबकी जिंदगी में बहुत ही बहुत खुशियां आए, आपकी झोलियां खुशियों से और बरकतों से भरी रहे, आपके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हों और आप अपने सपनों की जिंदगी जिएं, यही मेरी प्रार्थना है. Thank you, thank you, thank you to each and every one of you for joining in this session, for taking the precious time out of your life to invoke and learn this power to make your life beautiful. I'm so blessed and connected to you, so blessed and grateful to be connected with you from different parts of the world. Thank you, thank you, thank you for being here. Thank you, Gulrose. Thank you, Anita ji. Thank you, Madhu ji. Thank you, Mara ji. Thank you, Chaya ji. Thank you, Neelam ji. Thank you, Rashmi. Thank you, Madhu ji. Thank you, Anita ji. Thank you, Reva ji. Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka. Thank you, Razia ji. Thank you, Soumya. Thank you, Rekha ji. Thank you, Manju. Thank you, Chatwani ji. Thank you, Suman. Thank you, Shobha. Thank you, ma'am, very Anju. much. Thank you, Sapna. Thank you, Anjana ji. Thank you, Pinky. Thank you, Jyoti. Thank you, Gayatri. Thank you, Chandra ji. Thank you, Seema ji. Thank you, Radhika. Thank you, Renu ji. Thank you, Vijay ji. Thank you, Darshana. Thank you, Sharvi. Thank you, Sapna. Thank you, Ankita. Thank you, Kanchan. Thank you, Meghna. Thank you, Sunita. Thank you, Ritu. Thank you, Jayashri. Thank you, Abundance. Thank you, Bhavna. Thank you, Lakshman. Thank you, Ritu. Thank you, Deepa. Thank you, Purnima. Thank you, Cassie. Thank you, Sudha. Thank you, Chanda. Thank you, Sonia. Thank you, Saloni. Thank you, Ujjwala. Thank you, Manisha. Thank you, Suraj. Thank you, Jaina. Thank you, Pallavi. Thank you, Padma. Thank you, Vaishali. Thank you, Varsha. Thank you, Seema ji. Thank you, Shalini. Thank you, Sunita. Thank you, Poonam ji. Thank you, Divya. Thank you, Khushbu. Thank you, everyone. Thank you for being here. Thank you so much for your time, for your smiles. Thank you for your positive energies which you bring. Thank you so much for being here in this session. Love you all. I'm pretty sure जैसे जैसे हम chapter पढ़ते जा रहे हैं, आपके questions भी बढ़ते जा रहे होंगे कि इस रिश्ते के साथ कैसे ऐसा क्या करें, इसके साथ कैसा करें, इसको कैसे handle करें. So just stay with your questions, write them down. जो भी questions आपके आ रहे हैं, आप अपने notebook में लिखते जाओ. ठीक है? सारे questions, I think most likely I will take the session on Saturday. Question answers का session रहेगा और and chat पे आप अपने, और अगर आपको कोई ऐसा कोई personal question पूछना है जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपका वो question सुने या आपके personal, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में अपने दूसरे नाम से लिख सकते हैं. ठीक है? तो आप, ताकि आपको ये ना लगे कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है तो मैं सबके सामने
कैसे पूछूं। सो कई लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं सबके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, पर मैं एक एक करके काफी सबके क्वेश्चंस शायद ना आंसर कर पाऊं या सबके साथ टाइम नहीं, बट I would encourage all of you to maybe change your name on Saturday. Write your questions on the chat box. अगर आपको अपना कोई भी क्वेश्चन, ताकि क्या होता है कि हो सकता है मैं भी ये लर्न कर रही हूँ, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी को कोई और चैलेंज आ रहा है, तो आप सब भी उनकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन से शायद दूसरों का भला हो जाए, उनका भला जो जिनमें अभी वो हिम्मत नहीं आ पा रही है वो क्वेश्चन पूछने की, उनका सेम क्वेश्चन हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है, सो मे बी यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन आउट। ओके, सो हो सकता है 1 घंटा शायद जल्दी हो सेशन सैटरडे को, but let me work out the time. Will everyone be comfortable in Dubai or US से जो है, अगर 1 घंटा सेशन जल्दी हो? I think Seema ji, whoever Seema ji joins from US, I'm not sure she is here today. Seema ji? One Seema ji is from Dubai. We don't have any problem. We can join 1 hour early. Okay. I think okay, so maybe we might join early 1 hour early, but I will put it on the group. और other thing is कि इसकी आपको जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या जो इसको दोबारा सुनना चाहते हैं चैप्टर्स, या जो एफर्मेशंस जो मैं मेडिटेशन में बोलती हूँ उसको दोबारा सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं सारा कुछ टाइप करके नहीं डाल सकती, तो डे 1 का यूट्यूब ऑलरेडी रिकॉर्डिंग उसमें आ गई है। So thank you to everyone who has prayed for it. Thank you to Anita ji's daughter. Thank you to so many people who have helped me, encouraged me to put it on the YouTube. So आप सबकी वजह से ये सब हो पाया है। It's not very professional, धीरे धीरे करके हो सकता है प्रोफेशनल भी हो जाए, but thank you so much and I'm hoping and आपकी ब्लेसिंग और प्यार की वजह से हो सकता है ये रिकॉर्डिंग्स दूसरों की लाइफ में शायद कोई ना कोई रोशनी लेके आए, तो आप Something better than nothing, ma'am. में रोशनी लेके आए। So Something better than nothing, ma'am. So thank you so much. I hope this recording helped. Thank you, Anju. Thank you for everything. Love you. Ma'am, for it's more wonderful than session. professional, ma'am. Love you for wonderful session. You are giving Thank you so so- much in abundance. You are giving Thank you for wonderful my session. rock pillar support for being there in every you. session. Love you. Thank you. Thank you. Thank I you. want to share you. something. Love you, love you. Love you. Love Love you, you. Anju, please. Thank you, Anju ma'am. Thank you, Anju ji. Thank you so much. Yes, I- sharings I can take. Question Thank answers you. सिर्फ सैटरडे को क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जैसे जैसे ये बुक बताती जाएगी ना, हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा कैसे कि वो सामने वाला हमारे साथ ऐसे करे तो हम कैसे जवाब ना दें, हम कैसे चुप रहे, हम कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको लिखो। लेकिन मैं ये भी बता रही हूँ कि आपके जैसे जो आपने पहले दिन क्वेश्चन लिखे थे ना, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर कट जाए, या दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन आपके हो सकता है वो क्वेश्चन कटते जाएंगे। हो सकता है जब हम सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सेशन लें तो शायद 1-2 क्वेश्चन ही बचे या कोई क्वेश्चन बचे ही ना, इसमें हर क्वेश्चन का आंसर है, राइट? So great. So thank you so much for your patience in asking the questions, and I really appreciate your understanding. Thank you so much. Okay, let's listen to the sharing. Yes, please go ahead. Yes, my sharing अभी की है, just अभी इसी moment की। Can you share? Hanji, I'm Hanji, Madhu. please go ahead. You know what happened? I was sitting outside and तो मेरे रूम से ही डोर खुलता है and my husband ने बंद कर दिया, अंदर से लॉक कर दिया. I had to come in. तो अगर मैं मेरे मन में बार बार आता, पता नहीं होता इनको भी मुझे अंदर भी आना है, मैं बाहर ही रहूंगी क्या? तो एकदम से थॉट आया and I just cut it and said कि प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है. Wow. Amazing. और Amazing. इतने लेवल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है।
और जो भी इस लेवल तक पहुंच गए ना, अपने आप को बहुत बहुत यू शुड फील प्राउड ऑफ इट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू मधु जी, कि हमें अब ये आ गया है कि हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, अरे ये तो नेगेटिव था, मेरे को पॉजिटिव इसमें कैसे बोलना है। और आज मैं एक लिस्ट भी डालने वाली हूँ कि आप अपनी वोकैबुलरी में कौन से पॉजिटिव वर्ड्स ऐड कर सकते हो। so I'll put that list on. So thank you मधु जी, it was such a beautiful sharing जो अभी आपके साथ हुआ, और अभी सेशन करते करते आपने कैसे अपने थॉट्स और वर्ड्स को चेंज किया। वाओ अमेजिंग, I have to share. amazing मधु जी, thank you so much for sharing. yes please go ahead मंजू। जैसे कि अंजू तेरे को पता ही है कि मैं जो अभी 369 लिखा था वो सब वैसा हुआ, लेकिन आज ये रिलेशनशिप का शेयरिंग मैं कर रही हूँ। मैंने इसका भी लिखा था, और जो वर्ड्स मैंने लिखे थे, ट्रैवलिंग, टॉकिंग, ईटिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एवरीथिंग, और वॉकिंग, वो सारे वर्ड्स जो अभी आपने मेडिटेशन में भी बोले, I am seeing in these days, in my present days, these days, वो सब हो रहे हैं, साथ एकदम हो रहे हैं वो सारे। Everything is going like that, everything is going like that. And we are going to travel also, we are going for movies, walking together, eating together, spending time together, पकड़ के बिठाना मेरे को कि यहाँ बैठ, बात करते हैं, ये करते हैं, everything, and so many things you have also seen when you came here, and everything is going like that. Whatever I have written, one word is going like that with my husband. Thank you Vaheguru ji, thank you for giving everything. और मेरे आंसू निकल रहे थे, जैसे जैसे मेडिटेशन हो रही थी, विजुअलाइजेशन हो रही थी, मेरे आंसू निकले जा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मंजू जी। तो मैं कहती हूँ इन्होंने तो अपने सारे सपने, अपनी बेटी का जो ड्रीम लिखा था वो भी पूरा कर दिया, मेरे को इंडिया बुलाने का ड्रीम लिखा था वो भी पूरा हो गया। इनके साथ इनकी मैनिफेस्टेशन, इनकी ड्रीम की वजह से मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी इंडिया आ गए, मतलब इन्होंने उनको भी खींच लिया। इनके पास तो इतनी पावर आ चुकी है, पावर ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड आ चुका है। और आज जो इनकी शेयरिंग है, जो कि मेरे को पता नहीं थी क्योंकि मैं जो भी इंडिया में देख के आई थी, बट शेयरिंग दिस, और ये विद इन 2 वीक्स में इतना बदलाव आना, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पॉजिटिव शेयरिंग्स एंड टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस की, और इस पे विश्वास करना, जो जिनको इस चीज जर्नी पे विश्वास नहीं है, तो आप सबके सामने है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप हाई फीलिंग्स में रहते हैं, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे वो इंसान चेंज हो जाता है, आपको, आप तो ऐसे अवाक रह जाओगे कि ये क्या हो गया, ये सपना है कि रियल में हो रहा है मेरे साथ। और मैं इनके ये रिलेशनशिप जिसके साथ बात ये बता रही हैं, मैं तो खैर बहुत ही क्लोजली जानती हूँ, बहुत ही क्लोजली उनको देखा है, और उस इंसान का बदलना, इट इज अ मिरेकल। तो मिरेकल्स रोज हो रहे हैं लोगों की जिंदगी में, और जब आपके अपने लव्ड वंस में, आपकी अपनी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होते हैं ना, तो आपका अटूट विश्वास इस जर्नी पे बन जाता है। सो थैंक यू मंजू for having the courage and doing the hard work of practicing gratitude and love to make your life magical, to make your children's life magical, to make your home environment so peaceful and loving. क्योंकि जो मैंने आज इस बार जब मैं इंडिया गई, जो मैंने देखा, I was amazed. इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, और यही एक रीजन है जिनकी वजह से मैं इस जर्नी में आई थी, इन्होंने ही मेरे को इस जर्नी में डाला था। So thank you so much for being there for me, and thank you so much for being our inspiration for all of us, and thank you for being the rock pillar of my life as well.
Thank you, thank you, thank you. Love you, love. Thank you. It's all of your blessings and love and care, and you are always a rock pillar for me. You are supporting, always standing for me, giving everything. Thank you. Love you from my heart, core of my heart. You are an angel for me. Thank you for everything. Thank you for always supporting me. और इसको सेलिब्रेट करना है जब आपके सपने पूरे होते हैं. Let's celebrate, be in the happy feelings. आज जाओ, उसको सेलिब्रेट करो, डांस करो, गाने गाओ, बाहर खाना खाने जाओ, जो भी आपको जैसा लगता है कि कैसे इसको सेलिब्रेट करें, बिकॉज ये आपका हार्ड वर्क है, आपके सपने हैं, आपने इसके ऊपर बहुत विश्वास, फेथ और इस पे काम किया है. बताने के लिए तो YouTube पे बहुत सेशंस हैं, बहुत लोग मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत लोग सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन क्या हम हर चीज को सुन के उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? लेकिन ये आपका हार्ड वर्क है. अगर किसी की लाइफ में भी मैजिक्स और मिरेकल्स हो रहे हैं तो आपने उसको उस पर विश्वास करके अप्लाई किया है, तभी ये मैजिक्स होने वाले हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव द फेथ. I love you all, and may everyone's life and relationships be magical and miraculous and amazing and loving in their life. यही मेरी दुआ है. जितने भी लोग आज हम 60-70 जितने भी लोग इस सेशन में आते हैं, सबके रिलेशनशिप्स बहुत 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 खूबसूरत हो, बहुत रोशनी आए उसमें, बहुत ही झोली आपकी खुशियों से भरी रहे. Thank you so much everyone. Love you all. And God bless you. Love you. And we'll see you tomorrow. It was really inspiring. Very, very inspiring. Very, very inspiring. And we all are emotional also. And you know, we can also do it. We can also change ourselves. Or like we are not above the feelings all the time. वो वही तो करना. जैसे मधु जी का परफेक्ट एग्जांपल था, कैसे उन्होंने फटाफट चेंज किया अपने थॉट को, राइट? उन्होंने एकदम अपने आप को पकड़ा और फटाफट वैसे चेंज कर दिया. यही तो करना है, यही करना है रोज. यही टेस्टिंग है, यही एग्जाम है, यही हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. उन्होंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, नेगेटिव कुछ नहीं बोला, अपने आप को चेंज कर दिया, अपने वर्ड्स को चेंज कर दिया. एंड मंजू जी ने भी वही किया. ना कुछ अपने बच्चों को बोला, ना अपने हस्बैंड को, किसी को कुछ नहीं बोला, बस वो ग्रैटिट्यूड करती रही, वो लव की फीलिंग्स देती रही, वो लिखती रही. एंड यूनिवर्स ने क्या बोला? बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, आपको सिर्फ हाई फीलिंग्स में रहना है, खुश रहना है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. But what to do at that moment? Like we react immediately, no, for something, किसी की लिए भी, and then we feel guilty about it. We realize it, we understand, but उस समय जो react कर देते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है. तो काम, इसका मतलब प्रैक्टिस और करनी है, प्रैक्टिस करनी है. बुक ने तो यही बोला है कि वहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम देयर. अपने कमरे में बंद कर लो अपने आप को और ग्रैटिट्यूड लिखते हो. और मैजिक बुक क्या बोलती है? एक कंप्लेन, एवरी कंप्लेन, हाउ मेनी ग्रैटिट्यूड्स वी हैव टू डू? 10. जिंदगी में जितने भी कंप्लेन्स और नेगेटिव थॉट्स और रिएक्शंस करिए ना, आज सबका वो हमारे सामने है. तो हमें लगता है कि दूसरे के इंसान की वजह से हमारी जिंदगी खराब है, उसने ऐसा किया. नहीं, अपने आप को झांको, अपने आप को चेंज करो. जैसे ही हम उस पे काम करना शुरू कर देंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा. बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है. बाहर वही हो रहा है जो अंदर था. और जो एक्टिविटी कल अंजू ने कराई कि आप एक वो लिस्ट बनाओ, लाइन लगाओ और सेंटर में, और लिखो, अपना भी लिखो और उनका भी लिखो. तो जब आप एक भी चीज के ऊपर पकड़ लेते हो ना, एक भी चीज को उस इंसान के अंदर, और उस पे काम करना शुरू कर देते हो, तो बहुत बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत. तो मैंने जो कल लिस्ट लिखी, और पहले भी मैंने लिस्ट लिखी है,
पहले भी लिखी थी। मेरी क्वालिटीज से ज्यादा क्वालिटीज मैंने लिखी है उनकी, और उन्हीं चीजों को पकड़ना है बस। कोई इंसान 100 गुना संपन्न नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ उनकी क्वालिटीज पकड़नी है और डिसक्वालिटीज को साइड कर देना है एक टाइम के लिए, अगर आपको रिजल्ट्स लेकर आने हैं। तो उन क्वालिटीज पे बस देखना, उन क्वालिटीज को देखते जाओ, उसको बारे में सोचते जाओ, खुश होते जाओ और हैप्पी होते जाओ उन क्वालिटीज को लेकर। यही चीजें रिजल्ट्स लाएंगी आपकी लाइफ में। और मैंने ये लिखी हैं, इतनी सारी क्वालिटीज लिखी कल उनके लिए, अपने से भी ज्यादा। तो दिस इज द वेरी वंडरफुल थिंग। ये चीज आपको आपके अंदर से निकालती है और देखने की वो देती है कि और क्या लिख सकती हूँ, और क्या लिख सकती हूँ, और क्वालिटीज क्या ढूंढ सकती हूँ, और वर्क ऑन इट। बस उसी पे काम करना है। That's right. I'm not working. समझ में आ रहा है कि I'm not working hard. बस इस हार्ड वर्क, बस यही तो करना है। मतलब हम लोग अपनी जॉब पे जाते हैं और पता नहीं कहाँ कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने घंटे देते हैं उस चीज को, लेकिन ये बुक, पावर बुक, मैजिक बुक कुछ नहीं कहती है। ये सिर्फ कहती है कि टाइम दो अपना मेरे ऊपर, प्रैक्टिस करो, मेरी एक्सरसाइजेस पूरे अच्छे से करो, इसको पूरे अच्छे से उतारो अपनी लाइफ में, समझो। तो रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपने अगर दिन के 2-3 घंटे भी दे दिए ना, तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कहती आई एम फुल परफेक्शनिस्ट, मैंने पता नहीं कब से वो ग्रेटिट्यूड भी नहीं लिखे होंगे कुछ दिनों से, बिकॉज देयर इज अ हेल्थ चैलेंज गोइंग ऑन। तो मतलब, लेकिन वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी रखना, वो विश्वास रखना इस बुक पर, इस पावर बुक पर विश्वास रखना, वो चीजें, खुश रहना अंदर से, ना कुछ करते हुए भी खुश रह रहे हो, और पेशेंस रख रहे हो, कामनेस रख रहे हो, और क्वालिटीज देख रहे हो उस इंसान के अंदर, तो रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और मैंने यही सब करा है। 369 लिखा, जो भी उसमें लिखा, मैंने वो चीज फाइंड करी है उस इंसान के अंदर, देखा है और लिखा है उसको। फिर वो एक एक चीज अब सामने आ रही है, एक एक चीज। जैसे मंजू जी, व्हाट इज दिस 369? 369 मतलब हमको अपनी विश लिखनी है या उसके अंदर जो चेंज लाना है वो लिखना है? वो दिस इज एक टेक्निक है ये 369। आपको एक सेंटेंस बनाना है अपने लिए कि आप क्या चाहते हो, किस पे काम करना चाहते हो, उसका एक आपने पैराग्राफ या सेंटेंस बना लिया। अब उसको आप दिन में एक बार 3 बार लिखना है, एक बार 6 बार लिखना है, फिर 9 बार लिखना है। और ये 3 टाइम आपके फिक्स होने चाहिए कि इस टाइम मुझे लिखना ही लिखना है, फिर उसको आप मिस नहीं कर सकते। वो कोई भी 3 टाइम आप चुन लीजिए अपने लिए, चाहे आप 3 बजे, 6 बजे, 9 का टाइम चुन लीजिए, चाहे सुबह से शुरू कर दीजिए, कोई भी 3 टाइम, और उस पे आपने लिखना है। और तब तक लिखना है जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए, जब तक आप वो चीजें अपनी लाइफ में पा ना लो। और फिर वो 5 तरीके जो बताए गए, अंजू जी हमेशा समझाती हैं कि विजुलाइज करना है, सुनना है, लिखना है, देखना है, बोलना है। 5 वो तरीकों से हमने इस पे काम करना है। तो यही इसका वो टेक्निक है। इसके लिए आज से स्टार्ट कर, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे अपना विश लिखती हूँ उसमें। मेरा कोई टाइम भी 3 हो जाता है कभी कभी। नहीं तो कोई भी 3 टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिक्स कीजिए कि मुझे, हाँ इस टाइम मेरे पास टाइम है आप करने के लिए, वो वाला फिक्स कर लीजिए कि मेरे पास अभी 9 बजे का टाइम है, मेरे पास नहीं, सारा काम खत्म करने के बाद 2 बजे का टाइम है, या मेरे पास सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे का टाइम है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिक्स कीजिए, लेकिन फिर उस टाइम पे करना है। और इसको 21 डेज तक तो करना ही है। और आपकी इच्छा है आगे बढ़ाना चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं जब तक वो पूरी ना हो। और मैंने तो, और ऐसा भी होता है कि आपको लिख के छोड़ देना है और फिर पॉजिटिविटी में रहना है, हैप्पीनेस में रहना है, और उसको विजुलाइज करते रहना है, और हर वक्त वो थॉट में आपके चलते रहना चाहिए, वो अंदर आपके चलते रहना चाहिए कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे अचीव करना है। तो अपने आप फिर वो पॉजिटिविटी में रहते हो, हैप्पीनेस में रहते हो, क्योंकि जब तक आप इसमें नहीं रहते हो ना, आप अचीव नहीं कर सकते, इसको नहीं अचीव कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त पॉजिटिविटी रहती है, नहीं,
चैलेंजेस आते हैं, चीजें बदलती हैं, लेकिन फिर अब जैसे अभी मधु जी ने करा एकदम से अपने आप को चेंज करना, इस तरह से प्रैक्टिस करते जाए। और जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर इतनी कामनेस, इतना ठहराव आ जाएगा कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। ये एक्चुअली 3 बार लिखना है, 3 बार जो लिखना है तो तीनों बार अलग अलग टाइम लिखना है, हर रोज अलग अलग पेपर पे लिखना है। मेरे ख्याल से अभी टाइम ज्यादा हो रहा है सेशन का, तो जो सैटरडे डे रखा है अंजू ने, उस दिन हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसको अभी यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि टाइम सेशन का बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस दिन आपकी सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे आपको। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, अंजू पूरा एक्सप्लेन कर देगी। तो हम सैटरडे को इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Manju ji. Thank you so much. Thank you so much. और अनीता जी, Love you all. आपका क्वेश्चन था कि विजुलाइज भी 3 बार करना है। विजुलाइज आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं दिन में, लेकिन उसका जो टाइम लिमिट है, जो पावर बुक ने बोला कि वो 7 मिनट्स तक का ही रखना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो वो 7 मिनट्स का विजुलाइजेशन है, और हर ड्रीम का विजुलाइजेशन 7 मिनट का होना चाहिए। पर अभी हम एक ही ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक ही इंसान के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको दिन में 3 बार विजुलाइज करना चाहें, आप 3 बार कर सकते हैं, 6 बार करना चाहें कर सकते हैं, जितनी बार भी आप विजुलाइज करना चाहें, हर घंटे करना चाहें आप कर सकते हैं। पर उसका जो पीरियड है वो 7 मिनट्स का ही, ठीक है। थैंक यू मैम। मिनिमम 1 टाइम विजुअलाइज करना या 3 बार करना है? मिनिमम 1 टाइम, मिनिमम, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। आपके पास जितना टाइम है आप उसको विजुलाइज करते रहो। ठीक है। तो जैसे मंजू जी ने बताया कि इन प्रैक्टिसेस पे आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही रिजल्ट आपके हमारी लाइफ में आएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये वो वाला। और हमें लगता है कि नहीं, पहले हम अपना बिजनेस संभाल लें, पहले हम अपना काम कर लें, पहले मेड से काम करा लें, पहले घर सफाई कर लें। वो तो सारी जिंदगी किया है, सारी जिंदगी किया है। और करके भी क्या रिजल्ट्स आए हैं सामने। आज भी हम बैठे हैं सेशन में अपने आंसर्स ढूंढने के लिए। तो एक महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 21 दिन के लिए क्या हम उसको, इस चीज को प्रायोरिटी दे सकते हैं? क्योंकि इसको अगर प्रायोरिटी दे दी, आपका एक्सक्यूज मी, आपका फाइनेंशियल चैलेंज, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, वो तो अपने आप ही उसमें मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्स ने अपने आप आपको सारे रास्ते बता देने, सब कुछ ठीक कर देना है। जैसे उन्होंने बोला, लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स। बस खुश रहो, इसकी प्रैक्टिसेस करते रहो, दैट्स ऑल। व्हाटएवर द बुक इज सेइंग, जस्ट कीप डूइंग दैट। सो थैंक यू मंजू, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। Thank you, ma'am. Love you too, ma'am. Love you too. थैंक यू सो मच। Thank you, Anju ji. Thank you, Manju ji. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Anju, nice session. Thank you so much, ma'am. Thank you, Jen. Thanks. Manju ji, for your sharing. Thank you so much. Thank you. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Do practice. टाइम दीजिए अपने इन चीजों पर, रिलेशनशिप्स पर टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए। सब कुछ हर कोई अचीव कर सकता है, इसको हर कोई कर सकता है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू अंजू। लव यू। God bless you. Love you too. Love you too.